the Center for Earth Science and Himalayan Studies for the memorandum of understanding which you have signed today. This will give a huge impetus in your effort to understand about the sciences involved in the formation of this region. Especially Arunachal Pradesh is one of the least studied area scientifically. So this will give a ample opportunity and scope for many research activities which will be very useful. And also it will get into many other domains. The earth sciences is such a interesting subject, and it has a vast scope, because I feel we humans still have studied very little. The more we study, the more we learn. Whatever we have studied, I have stated in the past also, in the atmosphere we have gone very deep, but inside the earth we could hardly go deep. The efforts which we are putting, the bore well which we are digging in the state of Maharashtra is targeted to be around 7 kilometers. The deepest so far is been done by the Russians, that's around 12 kilometers, and the Chinese have a target of reaching up to 10 kilometers. They have started their drilling now. So that means you can imagine how little we have gone inside. So earth science is extremely interesting, and you all know the sphere of our work and our area of studies. About the atmosphere, we all know, especially IMD is very visible department, because everything is related to your daily life requirement, the rains, the floods, all kind of activities which you see. And all the airports are manned by the ATC, Air Traffic Control, which is our IMD scientists and expert people are there. So we all are aware of what is happening in this atmosphere. So this study is climatology. We study about the atmosphere and all related activities. So that is called atmosphere. The other sphere is the geosphere, which we study about inside our earth, and that is basically what the team of scientists are doing lots of efforts, but as I said, we have not gone very deep yet. But it's very interesting. Especially I have given lots of emphasis on the seismology, the seismic studies. We know the movement of the earth, tectonic shift and continental drift and all. Still we can't predict earthquake. This will be a major challenge for the humanity. The larger area of our study under my ministry is about the oceanography. It's about the hydrosphere, the whole of ocean, the marine life, the resources inside and in the ocean, deep ocean study. It's such a interesting area. And the fourth area, you are aware, we study about the cryosphere, all the liquid which is in the solid form, about the North Pole, South Pole, and the third pole is Himalayas. Now coming to these Himalaya studies, I feel Himalaya belongs to us. Himalaya name is also ours, Himka Himalaya. Nepal, Bhutan is a part of Himalaya, but basically this is the Indian subcontinent. About Himalayas, we just have one recognized station called Himans in Lahore Spiti side. So I was telling my office team when I took over the ministry that we need to do much more rigorous effort to study about the Himalayas. We have actually least presence in terms of studies to be carried out in the Himalayas. Besides the glacial and other studies, we need to study about the environment also. We need to study many things about our own land, Himalayas. Arunachal is completely a Himalayan territory. Right from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh, this whole Himalayan region is extremely
interesting area where the whole global scientific community would like to come and do the research activities. I am very happy that Arunachal Pradesh established this Center for Art Sciences and Himalayan Studies. In fact, we will strengthen it. I will also have a larger, consultation how to strengthen. So my ministry and Arunachal government, Hunchung Sahab, and we will all discuss and we will ensure that we have adequate support system as well as good manpower, the team to work in the Center for Art Sciences and Himalayan Studies. Yesterday I had a meeting, so I told our team that I'm going to Itanagar, so we have to do something immediately. So Hunchung Nandan Sahab has given a memorandum. I will have a detailed discussion about the memorandum which he has submitted. तो आज तो हमारा मंत्री जी और चेयरमैन साहब भी है, पूरा टीम है, सेक्रेटरी साहब है, सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं. इमीडिएटली जो वेदर के बारे में हमारा जो ताकत है, जो अभी 100 आपका जितना भी जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और ऑटोमेटिक आपका रेन गॉज स्टेशन जो 100 आपका आइडेंटिफाइड है, शायद 21 लगा लिया, उसको जितना जल्दी हो सके तुरंत करना है. लेकिन अभी कैपेसिटी बढ़ाने का है. तो कल हमने एक निर्णय लिया कि जो हमारा डॉपलर स्टेशन है, अभी नॉर्थ ईस्ट में 8 फैसला किया था, तो कल हमने कहा कि इसको 11 करो, तो 3 हम अरुणाचल में देने का फैसला किया. इसमें अभी जिस हिसाब से आप लोगों ने डेंसिटी जो प्रेजेंट किया है, ये जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गॉज का, फिलहाल आपका जिस रेंज में आपका इंटेंसिटी है वो मेरे ख्याल से बढ़ाना पड़ेगा. जैसे पापुम पारे के लिए आपने कहा कि 15 AWS and ARG स्टेशन इन एंड अराउंड पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट विद ईटानगर एज कैपिटल. तो मुझे लगता है कि अभी हम पूरा अरुणाचल का इसका सारा कवरेज एरिया का हिसाब से देखते हुए हम इसको बढ़ा सकते हैं. लेकिन अभी जो 3 डॉपलर वेदर राडर जो बिठाने का है, वो मैंने सोचा है ज्योग्राफी, क्योंकि मुझे तो आइडिया है ही, अपना एरिया है. तो वेस्टर्न अरुणाचल के लिए एक सेपा में लगाएंगे और सेंट्रल अरुणाचल के लिए आलोंग में लगाएंगे, आलो में. और ईस्टर्न के लिए मैं चाहता हूं कि हमारा हुनचुंग साहब आप लोग स्टडी करके वहाँ कहाँ सबसे सेंटर पड़ेगा, जैसे तेजू है, नामसाई है, या आपका तिराप चांगलांग साइड का, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छा होना पड़ेगा. क्योंकि उसका बाद में हम लोग इसका बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे टू बिगिन विथ. तो इसमें आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, एक सुइटेबल लोकेशन, क्योंकि साइंटिस्ट लोग को मालूम है एक पर्टिकुलर उसका सुइटेबल लोकेशन उसका चाहिए. तो लैंड एक्वायर करना है. लैंड का पैसा हम लोग मंत्रालय से देंगे. तो लैंड एक्वायर करके उसमें टावर बैठा के आप वहाँ वो इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे. तो ये जब करेंगे तो सारा अरुणाचल प्रदेश का सारा वेदर स्टडीज, क्योंकि ये डीप वर्टिकल स्टडीज करेंगे, पूरा आपका वेदर फोरकास्ट एक्यूरेट हो जाएगा. जितना इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे उतना ही हमारा प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो जाएंगे. मैं चाहता हूं कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर में हम इतना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए कि एक वैली का रेन फोरकास्ट एक्यूरेट हम कर सकना चाहिए, ताकि किसान कब उसको बीज लगाना है, कब हार्वेस्ट करना है, उसको पूरा मालूम होना चाहिए. तो किसान के साथ एक हम लोग कार्यक्रम भी इसी महीने में करेंगे. मैंने मंत्रालय को कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल कंडक्ट वन मेजर अवेयरनेस प्रोग्राम विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली द फार्मर्स, समवेयर इन ईटानगर रीजन वी विल बिगिन विद. तो उसके लिए हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का और ये सेंटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सारा टीम मिला करके फिर हमारा डिपार्टमेंट IMD का और जितना भी साइंटिस्ट है सब मिल करके एक अच्छा अवेयरनेस करेंगे.
हम अल्टीमेटली जो हमारा ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स जो है, हर किसान का हाथ में पहुंचाना है, ताकि हर एक आदमी मालूम होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कब करना है। अभी तो कब फ्लड होता है पता नहीं चलता है, तो कब फ्लड आएंगे, कितना मात्रा में फ्लड आएंगे, उसमें किस लेवल का फ्लड होगा। हमारा अगर बारिश होता है तो भी तो आइडेंटिफाई होना चाहिए ना कि किस लेवल का ये बारिश होगा, ताकि कितना इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो अंदाज से चल रहा है। जिस तरीके से ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल, प्रेशर लेवल हम लोग मेजरमेंट करते हैं, प्रिसाइसली हम लोग प्रिडिक्शन कर सकना चाहिए। और हम लोग भारत सरकार की ओर से जो अभी सुपर कंप्यूटर लगाना जा रहा है 18 पेटाफ्लॉप्स का, उसके बाद पूरा इंडिया में हम लोग का जो वेदर रीडिंग लॉन्ग टर्म भी हम लोग का लगभग परफेक्ट हो जाएगा। मीडियम टर्म तो ठीक ही है, शॉर्ट टर्म तो प्रॉब्लम नहीं अभी ऑलरेडी। और ये डॉपलर जो हम बोल रहे हैं, इसमें ज़्यादातर इंडिजिनियस इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, मेड इन इंडिया है। तो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है। मैं जितने साइंटिस्ट लोग से अभी कंसल्टेशन किया, मैंने डिस्कशन किया, बहुत इनकरेजमेंट मिला है। ऑफ कोर्स जो सुपर कंप्यूटर है वो तो बाहर से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, उसका 900 करोड़ का लागत से वो लाने जा रहा है। तो हम लोग वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है दुनिया में जो इस स्केल का सुपर कंप्यूटर हमारे पास हासिल है। तो एक दिल्ली, अभी भी जो इंडिया का जो सबसे जो सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है वो एक नोएडा में है, हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम फोरकास्टिंग वाला सेंटर है, और एक पुणे में है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वाला। तो ये जितना हमने देखा अपना टीम, जितना साइंटिस्ट मैंने देखा है, अभी मैंने 2 ही सेंटर विजिट किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, मुझे बड़ा इनकरेजमेंट हुआ है। और यहाँ से मैं चेन्नई जा रहा हूँ, और 8 तारीख को वर्ल्ड ओशन डे है, तो चेन्नई में बड़ा कार्यक्रम होगा हमारा। वहाँ साइंटिफिक स्टेशन भी है, वहाँ काफ़ी मात्रा में काम भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ओशन और पोलर रीजन में जैसे हमारा एक्टिविटीज़ चल रहा है, हिमालयन रीजन में भी हमारा एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। आप सबको मालूम है ब्लू इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का टारगेट है कि 2047 में इंडिया को फुल्ली डेवलप कंट्री बनाना है, उसमें ओशन रिसोर्सेस, सागर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और जिन्होंने सागर का कंट्रोल किया वो दुनिया को कंट्रोल करता है, ये इतिहास है। तो ब्लू इकोनॉमी मतलब मिनरल रिसोर्सेस से लेकर के मेरिन लाइफ, मछली से लेकर के, वहाँ अंदर में पेड़ पौधे होते हैं सागर में, वहाँ पेट्रोलियम, वहाँ गैस, वहाँ सब कुछ होता है। तो जिंदगी का जो बेअहम चीज़ है वो सागर का अंदर में होता है। तो उसका हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो हिमालय के क्षेत्र में जैसे अरुणाचल में शुरुआत किया, ये सेंटर खोला है, इसी प्रकार हर स्टेट में, हिमालयन स्टेट्स में कुछ ना कुछ सेंटर है। मैं सबसे तालमेल करके हिमालयन रीजन जो हमारे लिए एक पवित्र रीजन भी है और इंडिया का एक लाइफ लाइन भी है, हिमालय जीवित रहेगा तो भारत के लिए हमेशा जीवन देते रहेगा। हिमालय को जिंदा रखना भी है, हिमालय को समझना भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में आने वाला दिनों में हिमालय क्षेत्र का जो स्टडी सेंटर आपने अर्थ साइंस यहाँ खोला है, अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़, इसका भी एम्पावरमेंट होगा। और मेरे अपने डिपार्टमेंट से भी एक्टिविटीज़ अरुणाचल में हम लोग बढ़ाएंगे। और फिर हमारा जो टीम, भारत सरकार का जो टीम है, हमारा साइंटिस्ट GEF सब सीनियर लोग यहाँ हैं, स्टेट का टीम है, मंत्री जी, हम लोग एक ही टीम है, हम लोग सब मिल करके एक यूनिट जैसे, एक टीम जैसे हम लोग काम करेंगे। भले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है, लेकिन वी आर वन टीम, वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। और आगे जा कर के हम लोग और माइलस्टोन्स हम लोग गाड़ेंगे, वी विल अचीव मेनी मोर थिंग्स। तो आज के लिए मैं फिर से, आप लोगों ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्टडी करके जो MOU का कंसेप्ट करके आज फ्रैक्टिफाई किया है, तो मैं उसके लिए दोनों टीम को मैं बधाई देता हूँ। फिर मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब, आपके पूरे टीम को और अरुणाचल गवर्नमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।